Hello everyone. Now here we are to discuss the ideal and non-ideal solutions in the solutions chapter of class 12th. So this is lecture 4. Today we will discuss about the lecture 4. Now in this lecture we will discuss about the ideal and non-ideal solutions, as well as we will discuss about the numericals based on the Raoult's law. First of all, we will discuss about कि what are the ideal and non-ideal solutions. Ideal solutions आपके होते हैं, जैसे हमने in the lecture 3 we have discussed about the Raoult's law. हमने Raoult's law के बारे में पढ़ा था. Raoult's law के जो आपके expressions थे, mathematical expression, that will be PA is equal to PA naught XA, PB is equal to PB naught XB, and P total is equal to PA plus PB. If you are having any doubt regarding this topic, so you have to confirm from the lecture 3. So now we will discuss about what are ideal and non-ideal solutions. Ideal solutions are the solutions which obey Raoult's law. जो Raoult's law को obey करते हैं at all the temperature and concentration, and each component will, as you know, the binary solutions में दो component होते हैं, solute and solvent. Both the component must follow the Raoult's law. Means all these expressions will be followed by each of the component at all the temperature and all the concentration. So these are called ideal solutions. And the ideal solutions में three more conditions are also there. The another is कि interaction between A and A, interaction between B and B, interaction between A and B. What does it mean? Interaction between the solvent molecules, interaction between the solute molecules, and the interaction between the solute and solvent molecules after mixing. The magnitude of the interaction always remains same. इनमें interaction same रहता है. So because of that reason, there is no change in the enthalpy of mixing. That is delta H mixing is equal to 0, and also there is no change in the volume. जब हम दोनों को मिक्स करते हैं तो वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आता. जैसे अगर आपने 50 ml एक लिया, आपने 50 ml दूसरा लिया, तो टोटल सॉल्यूशन आपका 100 ml ही बनेगा जब आप उसको मेजरमेंट लेंगे. सो द फोर कंडीशंस आर देयर फॉर द सॉल्यूशंस टू बी आइडियल. फर्स्ट इज द ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन मस्ट ओबे राउल्ट्स लॉ at all the temperature and all the concentration. That is, ये आपकी expressions है Raoult's law की. Second one is the interaction between the solute particles, solvent particles, and the solute and solvent particles remains the same. There is no change in their interaction, and because of that reason, the delta H mixing, that is the enthalpy change after mixing, is 0, and delta B mixing is equal to 0. So you may take the example of this. That is, suppose you are having normal heptane and normal octane या हेक्सेन, तो इनका जो सोल्यूशन होगा वो आपका आइडियल सोल्यूशन में काउंट होगा. बेंजीन आपने लिया, बेंजीन और टॉल्विन दोनों एक दूसरे को कहीं पे भी किसी तरीके से इंटरेक्शन नहीं करते. सो इन दोनों का भी इंटरेक्शन आपका सेम रहेगा और दे विल बी कंसिडर्ड एंड दे विल मेक द आइडियल सोल्यूशन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं. तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो होंगे, these are just opposite to the ideal solutions. Means the component will not obey the Raoult's law at all the temperature and concentration. Means the PA is not equal to PA naught XA, PB is not equal to PB naught XB, and similarly P total is not equal to PA plus PB. तो ये आपके होंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन का. अगर एमसीक्यू में अगर आपको दे दिया जाता है आइडियल एंड नॉन आइडियल के कंडीशंस और कोई एक कंडीशन अलग कर दी जाती है, पूछ लिया जा सकता है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग आइडियल सॉल्यूशन, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द आइडियल और द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. तो यू मस्ट नो अबाउट ऑल द फोर फैक्टर्स, ऑल द फोर कंडीशंस बाय फोर विच फॉलो द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. तो पहला तो आपका ये हो गया. सेकेंड होगा आपका इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, इंटरेक्शन बिटवीन सोल्यूट मॉलिक्यूल, एंड द इंटरेक्शन बिटवीन द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आफ्टर मिक्सिंग विल बी डिफरेंट. इनके बीच में इंटरेक्शन अलग अलग हो जाएगा. जैसे आप सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अगर आपने लिया क्लोरोफॉर्म,
and you are taking acetone CH3COCH3. अब अगर हम देखें तो CHCl3 और इसके अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन प्रेजेंट होता है, बट जब हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, मिक्सिंग के बाद क्या होगा, मिक्सिंग के बाद हमारे पास बन जाएगा इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे बन जाएगी, जैसे अगर आपने लिया कि CHCl3 और CH3C डबल बॉन्ड O and CH3, so there is a hydrogen bonding exists between the oxygen and the hydrogen, and because of this hydrogen bonding जो आपका affect आएगा, that will be on the vapor pressure of the solvent, vapor pressure of the solute, and that you will be studied in the negative and positive deviation, उसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो ये इस तरीके से उनका इंटरेक्शन चेंज हो जाता है। अब देखिए थर्ड कंडीशन क्या होगी, दैट इज डेल्टा H मिक्सिंग is not equal to 0, means delta H mixing can be greater than 0, means it may be positive, or delta H mixing can be less than 0, means it can be negative. So reaction may be exothermic in nature, endothermic in nature, and the reaction may be exothermic in nature. So they will make the non-ideal solutions. And the last one is delta V mixing is not equal to 0. तो ये भी आपका चेंज होगा, हीट एब्जॉर्ब होती है या हीट इवॉल्व होती है, डिपेंडिंग अपॉन दैट द डेल्टा वी मिक्सिंग विल आल्सो बी चेंजेस। सो दीज आर ऑल अबाउट द आइडियल एंड द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो आपके एमसीक्यू में असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो नेक्स्ट जो आपका है कि हाउ द राउट्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स एन असर्शन, ये एक असर्शन है, आपको दे देंगे एग्जाम में कि राउट्स लॉ is a special case of Henry's law, तो आप बोलेंगे assertion is right. Now what is the reason behind it? इसका रीजन क्या है, रीजन इसका ये है, जब आप राउट्स लॉ लिखते हैं तो राउट्स लॉ आप क्या लिखते हैं कि प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू द प्रेशर of the pure component, vapor pressure of the pure component and its mole fraction. And for the Henry's law, ये तो हो गया राउट्स लॉ में जो हम लिखते हैं। अब हेनरीज लॉ अगर हम लिखते हैं तो प्रेशर ऑफ गैस मीन्स कंपोनेंट इज इक्वल टू KH into X of gas means component. So if you will see, you can compare these two, then you can easily identify कि KH means in case of gases, KH is equal to PA naught, means the pressure and the KH both are equal, दोनों एक दूसरे के equal हो जाते हैं। So in that case क्या हो जाता है, KH becomes equal to PA naught. In solutions in which solute behave ideally according to Henry's law, the solvent also behave ideally according to Raoult's law. However, the reverse is not necessarily true, and the Raoult's law ideality the solvent does not mean that the solute must obey Henry's law. What does it mean? कि इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपका जो solvent है, तो ideality the solvent does not mean that the solute must obey Henry's law, but solvent will obey the Henry's law and Raoult's law both. So in that case you can see कि दोनों ही कंपोनेंट आपके प्रेशर से रिलेटेड हैं. So we can say that आपका Raoult's law is a special case of Henry's law. Now we will discuss about the some numericals based on Raoult's law in which the three formulas जो आपके हैं वो यूटिलाइज होंगे. कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं जो आपके यूटिलाइज होंगे, जो आपने Raoult's law में किए थे. आप भी अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करिए. That is PA is equal to PA naught XA, PB is equal to PB naught XB, P total या solution is equal to PA plus PB, and the last one is YA is equal to PA upon में P total, that is P solution, and YB is equal to PB upon में P total. बस यही फॉर्मूलाज हैं जो आपके इस वाले में हमारे यूटिलाइज होंगे. ओके, नाउ वी विल सी वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस न्यूमेरिकल. फर्स्ट न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड द डाइक्लोरोमीथेन. तो टू कंपोनेंट्स आर गिवन टू यू. टू कंपोनेंट्स में आपको दिया हुआ है, एक दिया हुआ है आपको CHCl3 और दूसरा कंपोनेंट आपको दिया हुआ है CH2Cl2. ठीक है, एक एक लाइन को आपने मीनिंगफुल पढ़ना है. At 298 Kelvin temperatures are 200 mmHg. ये प्योर का दिया हुआ है आपको. तो इसका मतलब P ऑफ, अगर हम इसको A कंसिडर कर लें और इसको हम B कंसिडर कर लें तो हमें थोड़ा सा इजी हो जाता है.
इजी वे आउट हो जाता है कि किस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया PA नॉट, दैट इज इक्वल टू 200 mm ऑफ Hg। जो प्रेशर है आपको वहीं पे रहने देना है। देन यू विल राइट द वेपर प्रेशर फॉर द PB नॉट। PB नॉट के लिए आपने नोट कर लिया। अब क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द, अच्छा इसी के साथ आप निकाल लीजिए मोलर मास MA एंड MB दोनों के लिए। तो ये आपका कितना दिया हुआ था, 415 mm Hg। MA अगर आप क्लोरोफॉर्म का मोलर मास लेते हैं, इट इज कम्स आउट टू बी 119.5 ग्राम्स पर मोल। वो तो आप मोलर मास ऐड करके निकाल सकते हैं। और दूसरा MB जो आपका CH2Cl2 का निकलेगा, दिस इज 85 ग्राम्स पर मोल। ये चीजें आ गई हमारे पास। अब हम देखिए हमने करना क्या है। अब हमारे पास है, तो हमने करना क्या है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, मीन्स P टोटल यू वांट टू कैलकुलेट। आपको P टोटल निकालना है। तो P टोटल निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होगा PA प्लस PB। पहली चीज तो ये हमारे पास आ गई कि हमने P टोटल निकालना है। अब क्या करेंगे, मिक्सिंग ऑफ 25.5 ग्राम ऑफ CHCl3, मतलब A के लिए WA आपको दिया हुआ है, WA इज गिवन 25.5 ग्राम, और आपको WB आपको गिवन है दैट इज 40 ग्राम। आप रिवर्स भी कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट आपको निकालना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज निकालना है। तो इसका मतलब यू वांट टू बी कैलकुलेट YA एंड YB आल्सो। तो ये तो हमें ये निकालना है और हमें ये निकालना है। ये हमारा प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन हमें चाहिए। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू, आई एम जस्ट गिविंग यू द स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द PA एंड PB। कैसे निकलेगा, PA नॉट XA एंड PB नॉट XB इक्वल टू PB नॉट XB। ये फॉर्मूला आपका यूटिलाइज होगा। ओके, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट PA नॉट PB नॉट आपको गिवन है, XA आप निकालिए, दैट विल बी NA अपॉन में NA प्लस NB, नंबर ऑफ मोल्स। उसके लिए आपको W और M गिवन है। ऐसे ही यहाँ से XB आप निकालिए, दैट इज WB अपॉन में MB। तो ये निकाल लीजिए, ठीक है। उसका ये आपका हो गया। तो जब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो NA कैसे निकलेगा, WA अपॉन में MA, और NB कैसे निकलेगा, WB अपॉन में MB। ये पूरा डाटा आपने ऊपर अभी लिखा हुआ है। MA और WA इसकी वैल्यू लगाइए, MB और WB की वैल्यू लगाइए। जब आप ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो NA जो आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CHCl3 आएगा, वो आ जाएगा 0.213 मोल। और NB जो आपका निकलेगा दैट विल बी कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेट 0.47 मोल। ये आपका निकल आएगा। NA और MB निकल आया, यहाँ लगाइए XA और XB आ जाएगा। इन दोनों को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करिए, XA और XB को, PA और PB आपका आ जाएगा। दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो यू विल गेट P टोटल। यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो P टोटल जो आपका आएगा, आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। P टोटल जो आपका आएगा 347.9 mm Hg। ये आपका आंसर आएगा P टोटल का, ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे। अब हमारा है कि हमने YA और YB निकालना है, विच इज वेरी सिंपल। YA इज PA अपॉन में P टोटल एंड YB इज PB अपॉन में P टोटल। P टोटल यू हैव टू फाइंड आउट हियर, यहाँ पे आप फाइंड आउट कर चुके हैं। PA और PB आप यहाँ फाइंड आउट कर चुके हैं। दोनों को जब आप रेशियो के अंदर डालेंगे तो जो आपका आंसर आएगा, तो PYA जो आपका निकलेगा 0.18, जो ये आएगा आपका 0.18, जो कि क्लोरोफॉर्म के लिए है। और यहाँ पर जो CH2Cl2 के लिए आपका आएगा दैट इज 0.82, ये आपका निकल आएगा। तो ये आपका YA और YB आ गया। अब यहाँ से आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि कंपोजिशन इन वेपर फेज आपका क्लोरोफॉर्म आपका कम जा रहा है और YB आपका ज्यादा जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इससे एक MCQ क्वेश्चन बन जाता है कि अगर आपको YA और YB दिया हुआ है तो विच इज मोर वोलेटाइल, तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि CH2Cl2 which is considered at B is more volatile as compared to CHCl3। ये ज्यादा वोलेटाइल है इसके कंपैरिजन में। तो दिस इज अ क्वेश्चन यू हैव टू राइट डाउन इन योर कॉपी आल्सो कि which component among the CHCl3 and CH2Cl2 is more volatile as compared to other one. Now the next numerical is the
second numerical is here. That will be heptane and octane form ideal solution at 373 Kelvin. The vapor pressures of the two liquid component. Again, the two liquid components के vapor pressure आपको यहाँ पर given है. तो वही आपका हो गया liquid A and liquid B, मतलब heptane and octane. तो heptane and octane का जो आपका vapor pressure दिया हुआ है आप उसको नोट डाउन कर लेंगे और are this respectively. What will be the vapor pressure of a mixture? अब अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन आपका उसी से बिल्कुल उसी से मैच करता है कि आप पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन निकालेंगे. अगर आप निकालेंगे तो हेप्टेन का जो आपका मोलर मास आएगा, मतलब अगर आप इसको हेप्टेन को ए ले लें, ऑक्टेन को आप बी ले लें, तो अगर आप निकालें तो आपको दिया हुआ टू लिक्विड कंपोनेंट, ये आपको दिया हुआ है दिस इज पी ए नॉट एंड दिस इज पी बी नॉट. और वेपर प्रेशर मिक्सचर का निकालना है आपको ये, तो ये आपको दिया हुआ है डब्ल्यू ए और ये आपको दिया हुआ है डब्ल्यू बी. तो ये हमारा रेडी हो गया. ये आपका दिया हुआ है पी बी नॉट और ये आपको दिया हुआ है पी ए नॉट. तो पहले तो हमने इसका डाटा बना लिया. अब अगर हम डाटा देखें तो हमें टोटल वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना है. तो टोटल वेपर प्रेशर कैसे निकलता है? तो टोटल वेपर प्रेशर का फॉर्मूला होता है पी टोटल इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा पी ए प्लस पी बी. एंड पी ए कैसे निकलेगा? पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी. बस आपको करना ही कुछ नहीं है. जब आप हेप्टेन का मोलर मास निकालेंगे, मतलब एम ए निकालेंगे, एम ए अगर आप निकालेंगे तो दैट इज कम्स आउट टू बी 100 ग्राम पर मोल. और जब आप निकालेंगे ऑक्टेन का दैट इज एम बी, इट इज कम्स आउट टू बी 114 ग्राम्स पर मोल. तो ये निकाल के आपका एक्स ए और एक्स बी आ जाएगा. देन यू विल फाइंड आउट पी ए नॉट एक्स ए एंड पी बी नॉट एक्स बी, देन पी टोटल, एंड द पी टोटल आंसर इज कम्स आउट टू बी 0.7343 राउंड अबाउट इंटू 10 टू दी पावर आपका 5, ये 0.7343 बार. किलो बार को आप चेंज कर सकते हैं, के बार में आएगा, के बार को आप चेंज कर सकते हैं बार में, 10 टू दी पावर 3 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा बार में. तो ये आप किलो बार में निकालेंगे तो आप इसको उसमें निकल आएगा आपका. ठीक है. नाउ द थर्ड न्यूमेरिकल इज द वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर कंपोनेंट A and B. Liquids A and B are 450 and 700 mmHg respectively. अब ये आपको यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट A and B आपको गिवन है. तो उसके बाद आपको निकालना क्या है इसमें? फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर if the total vapor pressure is 600 mmHg. Also find out the composition in the vapor phase. Find out the composition of the liquid mixture. मतलब आपको XA और XB निकालना है, YA and YB निकालना है. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है. तो प्योर लिक्विड आपको ये क्या दिया हुआ है? दिस इज PA नॉट एंड व्हाट इज दैट? दिस इज PA नॉट एंड दिस इज PB नॉट. ये आपको गिवन है. देन टोटल वेपर प्रेशर इज गिवन 600 mmHg. तो ये आपको 600 mmHg P टोटल गिवन है. तो चलिए अब यहाँ से फॉर्मूला शुरू करते हैं. P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB. नाउ if PA plus PB, that means it will become PA naught XA plus PB naught XB. Okay, then you can इन दोनों में से एक में आपको ट्रांसफॉर्म करना है. तो XA plus XB is equal to 1 होता है. तो you may change this and you can convert this into XB. You can convert this into 1 minus XA. आप XB को चेंज कर सकते हैं 1 minus XA, या आप XA को भी चेंज कर सकते हैं. तो जब आप इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो व्हाट इज कम्स आउट टू बी आपका P टोटल इज इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट 1 माइनस XA. ये आपका आ जाएगा. तो जब आप इसको अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, निकालेंगे, मैथमेटिक्स अपना अप्लाई करेंगे, क्योंकि PA नॉट गिवन है, PB नॉट गिवन है, P टोटल गिवन है, देन XA will comes out to be 0.4. बहुत इजी कैलकुलेशन है. 0.4 you will get, and if you are apply the XA value here, then you will get XB is equal to 1 minus XA, which is comes out to be 0.6. तो आपके दो चीजें तो आपकी आ गई, XA and XB. Now
The another step is YA, which is PA upon P total. Now, as the P total is given to you, so you have to calculate PA naught XA divided by P total. Okay, PA naught आपको पता है, XA आप निकाल चुके हैं 0.5, तो PA naught को अप्लाई करके you can find out the value of YA, and this YA is comes out to be 0.3. Similarly, in YB, that is PB upon में P total. अब उसमें भी अगर आप इसको ओपन कर लें तो XB which is divided by P total, again XB से मल्टीप्लाई करना है 0.6 से, and the answer will comes out to be 0.7. ये आपका निकल आएगा. Now again आपको कंपेयर अगर करें तो which component is more volatile in nature? So you can easily see कि the component B is more volatile in nature as compared to component A, because the composition of B in vapor state is more as compared to component A. So till here we have completed the numericals based on the Raoult's law. We have completed the ideal and non-ideal solutions, and we are also seen how the Raoult's law is a special case of Henry's law, जो कि आपका assertion और reasoning का question बनता है. So we have completed the Raoult's law here. In the next lecture, that is lecture 5, we will discuss about the non-ideal solutions, that is the deviation from the Raoult's law, which include the positive and negative deviation.